So the very first soil is laterite soil. In two conditions laterite soil is found, or two conditions are suitable for laterite soil. Number one, note करिएगा that there should be more than 200 annual centimeter of rainfall, and second is there should be hot temperature. और इस खूबसूरत से भारत के नक्शे में देखने के बाद 4 places are there where laterite soil is found. देखिए मेरे साथ. First is the part of Western Ghats, second is in Tamil Nadu region, third is at Odisha coast, and fourth is in the northern eastern states, that is in the part of Meghalaya and Assam. All of us have studied in our junior classes that this is the 0 degree line, that is equator, and literally India is nearer to equator, and especially the southern part of India or the tropical region of India is quite closer to India. So the Western Ghat, the Tamil Nadu region will have a hot temperature area. Now the question comes for annual rainfall, which should be more than 200 centimeter. So India receives rainfall from two segments. One is Arabian Sea and second is Bay of Bengal. So the first shower of monsoon comes in Kerala, then thereafter in Maharashtra, Gujarat in the Western Ghats, and almost on the same time from Bay of Bengal region, northeast India receives rainfall. और सर ये जो उड़ीसा वाला है ये, हाँ तो यार ये उड़ीसा वाले में मैं आपको बता दूं कि साइक्लोनिक रेन होता है, तो मतलब कि चारों के चारों पार्ट में आपको रेनफॉल की भी कंडीशंस क्लियर हुई और मतलब कि यार टेम्परेचर तो रहता ही रहता है हॉट. नेक्स्ट पॉइंट, लैटराइट सॉइल हैज फाउंड विद द वर्ड दैट इज लैटर विच मीन्स ब्रिक, यानी कि ब्रिक के कलर का लैटराइट सॉइल होता है और सबसे अच्छी ब्रिक्स जो है वो आप लैटराइट सॉइल से ही बना सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट्स where the laterite soil is found, so सबसे ज़्यादा it is laterite soil is found in Kerala, followed by Maharashtra, thereafter Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, little in Madhya Pradesh, and in the northeastern region, that is in Meghalaya and Assam. Note down the next point, laterite soil is the 4th largest soil found in India after alluvial soil, black soil and red soil. Next point is that laterite soil lacks humus, nitrogen, phosphorus and potash. And the last point is that which crops are grown in laterite soil. So cashew nut, coffee, rubber, banana, these are some of the plantations that are grown in laterite soil. So the next type of soil which we have to discuss is arid soil or desert soil. सबसे पहली चीज लिखिएगा, the arid soil or desert soil has been developed in the western part of India. Okay, some of the states are southern Punjab, southern Haryana, full Rajasthan and some part of Gujarat. So these are the states. मतलब ये पंजाब है तो साउदर्न पंजाब हो गया ना, साउदर्न हरियाणा हो गया, राजस्थान की बात करोगे तो पूरे के पूरे राजस्थान पे ही ऑलमोस्ट क्या मतलब कह ही सकते हो कि वहाँ पे एरिड या डेजर्ट सॉइल ही है, और पार्शली गुजरात में. नेक्स्ट पॉइंट, नोट डाउन that in Rajasthan or in western part the coarse grains are produced because other cereals cannot be produced here. Likewise wheat or rice cannot be produced because it needs water. So water availability of water is not much in Rajasthan. So coarse grains are produced. कोर्स ग्रेन्स का मतलब होता है मोटे अनाज. एग्जाम्पल लिखिएगा, रागी, ज्वार, बाजरा. ओके, दीज आर कोर्स ग्रेन्स. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट the process of evaporation is very faster in arid soil, so that is why the arid soil or desert soil lacks humus as well as moisture. क्या बोला कि हाँ क्या बोला चलो ठीक है. डेजर्ट में मतलब यार तुम्हें ये देखना है बेसिकली कि इवापोरेशन का प्रोसेस बहुत तेजी से ही फॉलो होता है. इवापोरेशन का प्रोसेस तो जानते ही हो, है कि नहीं. मतलब तुम्हारे घर में भी अगर कहीं पानी लग गया यार तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो पानी सूख जाता है जस्ट विद द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. तो यहाँ राजस्थान के पार्ट में इवापोरेशन का प्रोसेस और जल्दी से होता है, जिस वजह से ये सॉइल में मॉइस्चर यानी नमी की भी बहुत कमी होती है और ह्यूमस तो मतलब होता ही नहीं है जी. And the last point in arid soil is that in the lower horizon of arid soil calcium carbonate content is found. यानी कि यहाँ पे कंकड़ पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के तत्व पाए जाते हैं जो निचला हिस्सा होता है एरिड या डेजर्ट सॉइल का. द नेक्स्ट इज रेड सॉइल. रेड सॉइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेट्यू. मतलब ये आपका सेंट्रल हाईलैंड होता है और दिस इज द
और थोड़ा सा और नीचे आओ, दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। तो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में और डेक्कन प्लेट्यू के साउदर्न साइड में जहाँ पे लो रेनफॉल का एरिया होता है वहाँ पे रेड सॉइल डेवलप होते हैं। नोट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट दैट रेड सॉइल इज फाउंड इन उड़ीसा, देन इन छत्तीसगढ़, देन इन साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, यानी ये कि जो गंगा प्लेन हमने पढ़ा था अलुवियल सॉइल वाला, उस मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट में भी थोड़ा सा रेड सॉइल पाया जाता है। एंड इन द पीडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट ऑल्सो द रेड सॉइल इज फाउंड। लास्ट एंड वेरी स्पेशल पॉइंट इन रेड सॉइल इज दैट इस सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? तो ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस से या आयरन के डिफ्यूजन से, उसके स्प्रेड होने से ये जो सॉइल है ये रेड प्रतीत होती है। और ये येलो कब दिखती है, मतलब यही सॉइल येलो कब आपको दिखेगी? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म का हो। अब हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब कि जब वर्षा होती है, जब आपको वहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, वेट सॉइल होगी, तो उस समय वो सॉइल आपको पीला यानी कि येलो दिखाई देता है, और आयरन ऑक्साइड के कंटेंट प्रेजेंट होने से वो सॉइल आपको रेड दिखाई देती है। And the last soil which we have to discuss in this video is forest soil, or it is also known by the name that is mountainous soil. अब यार तुमको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि माउंटेनियन सॉइल मतलब माउंटेन की तरफ या माउंटेन पे ही पाई जाएगी, ठीक है। और अगर माउंटेन की बात करोगे भारत में तो द ग्रेटर हिमालय इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। नाउ लेट अस डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, the states where forest soil or the mountainous soil is found. You may note the state, it is very important for you guys. That is Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये उठा हुआ भाग है ना, ये टोपी नहीं है, दिस इज सिक्किम एंड दिस अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना किंगडम द ह्यूमस कंटेंट इज वेरी हाई। मतलब है ना यार, अब ये पहाड़ी क्षेत्र पे आप देखोगे तो फ्लोरा कंटेंट यानी कि पेड़ पौधे जंगल झाड़ियाँ आपको ज़्यादा को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी, और फौना किंगडम यानी एनिमल्स भी आपको यहाँ निवास करते हुए दिखाई देंगे। तो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी, क्या बोल गया यार मैं, सॉरी, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ ह्यूमस कंटेंट इज फाउंड, मतलब ह्यूमस आपको यहाँ ज़्यादा दिखाई देने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इन माउंटेनियन सॉइल दैट दिस सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड ऑन प्लेट्यूज। मतलब अगर आप ये जो माउंटेन है हिमालय हमारा, ये हिमालय कहीं ना कहीं एक जो पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर यानी कि इस प्लेट्यू कहिए या पथरीला क्षेत्र कहिए, इसके ऊपर सॉइल डेवलप है। और दूसरी चीज़ कि ये जेंटल स्लोप बनाती है। अगर आप हिमालय का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपकी ग्रेट हिमालय जो है ये नॉर्थ से लेके और नॉर्थ ईस्टर्न साइड तक गई है और एक जेंटल स्लोप बनाते हुए गई है। तो इस स्लोप के ऊपर, इस पथरीले क्षेत्र के ऊपर जो भी मिट्टी आपकी है, ये मिट्टी, इन पथरीलों क्षेत्र की मिट्टी को हम कहते हैं क्या डिस्कस कर रहे हैं, फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेनियन सॉइल। मतलब याद करते रहो बीच बीच में, ठीक है। तो अब एक चीज़ है कि इन मिट्टी या ये जो सॉइल हैं ये डाउनवर्ड फॉल होते हैं, यानी नॉर्थ से लेके और नॉर्थ ईस्टर्न तक के सफ़र को तय करते हैं। The second last point in the mountainous soil that in the snow-covered areas such as Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, these soil experienced denudation with low humus content as well as it is acidic. मतलब क्या हुआ सर जी? हाँ जी, मतलब बताते हैं शुद्ध भाषा में कि जब स्नो कवर्ड एरिया में यानी बर्फीले क्षेत्र में जो माउंटेनियन सॉइल है ये इन बर्फ़ से मिलके कि अम्लीय हो जाती है या उसको हम कहें तो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो भी लो हो जाता है, क्योंकि पहले तो ह्यूमस कंटेंट इसमें ज़्यादा था जब फ्लोरा और फौना किंगडम डायरेक्टली इस मड में थे, लेकिन यानी कि सॉइल में थे। अब ये सॉइल आपका कुछ स्नो कवर्ड एरिया में आ गया, तो बर्फ़ के मिलने के साथ साथ जो ह्यूमस कंटेंट है ये भी कम होगा और साथ साथ में ये अम्लीय हो जाएंगे, यानी दे विल बिकम एसिडिक। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट एप्पल, टी एंड पियर, पियर का मतलब नाशपाती, इस पे उगाया जा सकता है। तो स्वागत है आपका हमारे 2 मिनट सेशन में, पढ़ के जाना इसको ज़रूर। 2 मिनट में हम पूरा का पूरा वीडियो का एक समरी निकालेंगे। हमने पढ़ा क्या क्या। द फर्स्ट वॉज लैटराइट सॉइल। क्या इसमें पढ़ेंगे कि देयर मस्ट बी 2 circumstances where laterite soil has to develop. First is there should be more than 200 annual centimeter of rainfall, and second is the temperature must be hot. In the 4 part of India, laterite soil is found. First is in the Western Ghat, second is in the Tamil Nadu region, third is on the Odisha Tat, and fourth is in the Meghalaya and Assam area. Laterite soil is the 4th largest soil found in India after alluvial black and red soil.
नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लैटराइट सॉइल से ब्रिक बहुत अच्छी बनाई जा सकती है बिकॉज इट हैज बीन डेवलप्ड विद द वर्ड दैट इज लैटर, एंड लैटराइट सॉइल लैक्स ह्यूमस, नाइट्रोजन, phosphorus and potash. The Dvitiya one is arid soil or desert soil. So it has developed in the western part of India, in western Punjab, western Haryana, in Rajasthan and partially Gujarat. Here the process of evaporation is so faster, so the arid soil or desert soil lacks moisture as well as humus. सही बोल रहा हूँ ना? लिख लो यार, देख लो, अगर तुम लिखे होगे तो सही जा रहा हूँगा मैं भी, क्योंकि 2 मिनट का रिवीजन है। तो आगे चलते हैं। एरिड सॉइल में नेक्स्ट पॉइंट है कि हियर द कोर्स ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, ज्वार, बाजरा एंड रागी इज प्रोड्यूस्ड। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इन द लोअर हॉरिजॉन ऑफ एरिड सॉइल कंकर्ड इज फाउंड बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट। द थर्ड वन इज रेड सॉइल, ठीक है, तो रेड सॉइल थर्ड लार्जेस्ट सॉइल है इंडिया में। नेक्स्ट, द रेड सॉइल डेवलप्स इन लो rainfall areas in the eastern and southern part of Deccan Plateau on the crystalline igneous rocks. Next point, red soil पे आपका हो जाएगा कि it is found in Odisha, छत्तीसगढ़, in the some mid southern part of Ganga plain. The last point in the red soil that the color of this soil is red due to the presence of iron oxide or with the diffusion of iron, and it also appears sometimes yellow when it takes hydrated form or it is wet. The last one is forest soil or mountainous soil. So it is found in the states of Jammu Kashmir, Swarg of India, Swag of India. Next followed by नीचे नीचे आते जाना, बस स्टेट्स मिलते जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। देन माउंटेनियन सॉइल में आपकी ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना किंगडम। नेक्स्ट इज एक जेंटल स्लॉप, ये हिमालय बनाते हैं, तो इन स्लॉप्स के ऊपर जो है कि ये फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेनियन सॉइल डेवलप होते हैं। And in the snow covered area, this mountainous soil, there is a low humus content as well as it is acidic. And the last point is apple यानी कि सेब, टी यानी कि चाय और पियर यानी कि नाशपाती आप खूब ज़्यादा खा सकते हैं माउंटेनियस सॉइल पे।